Okay students, so let's get started with electric fields के past papers. Let's move on to question 1 part A. Define electric potential. So what is electric potential? Electric potential is work done per unit positive charge in moving a charge from infinity to any specified point. Chalo, let's move ahead. Let's move on to part B. An isolated conducting sphere in a vacuum has radius r and is initially uncharged. Okay. It is charged by friction so that it carries a final charge of q. Okay. Final charge q का radius r है. This charge can be considered to be acting at the center of the sphere. Okay. By considering the electric potential at its surface, show that the capacitance C of the sphere is given by this, where E naught is the permittivity of free space. Okay. बेटा हमें कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला पड़ा है? चार्ज डिवाइडेड बाय द वोल्टेज. अब ये वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट हैव वी स्टडीड इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स 1/4 पाई ई नॉट आर. यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होता है? चार्ज. दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट वोल्टेज. ठीक है, ये वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हुआ करता था. Can you replace this value? Can you replace this value in place of this V? Yes, you surely can. C is equals to Q divided by Q upon 4 pi mu naught R. Q and Q will get cancelled out. C will be equal to what? 4 pi mu naught R. Simple as that. Let's move on to part C. The dome of an electrostatic generator is a spherical conductor of radius this. It is initially charged so that the electrical potential is this. ठीक है, रेडियस आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया. ओके, बेसिकली ये V की वैल्यू है, दिस इज R की वैल्यू. ओके, अ स्मॉल आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ 5.2 सेंटीमीटर. एक और आइसोलेटेड स्फीयर ला रहे हैं हम. ठीक है, इनिशियली अनचार्ज. अच्छा, ये इनिशियली अनचार्ज है. ओके, is brought near to the dome. Sparking causes a current between the two spheres until they reach the same potential. A very important one. दोनों का potential same हो जाएगा, V same हो जाएगा. ठीक है, assume that any charge on a sphere may be considered to act as a point charge at its center. Calculate the charge transferred between the two spheres. Okay, basically we have two spheres. Let's say this is the red wala sphere and let's say this is the blue wala sphere. Red sphere has a radius of what? 13 centimeter and an electric potential. Voltage कितना है इसका? 4.5 into 10 raised to the power 3 volts. Can I utilize this value? अच्छा, initially blue क्या है? Uncharged है. Initially blue क्या है? Uncharged. Okay. Can I utilize R and voltage की value to calculate charge? Yes, surely I can. Capacitance किसके इक्वल हुआ करती थी? Charge divided by voltage. Capacitance into voltage is equals to my charge. Capacitance का भी क्या फॉर्मूला देखा था बेटा? 4 pi mu naught R. 4 pi mu naught R into the voltage V. This is equals to your charge. Okay. चार्ज क्या आ रहा है? लार्जर स्फीयर पे चार्ज क्या आ रहा है इनिशियली? लेट्स सी, 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12. ओके, एंड आर हमारा है 13 सेंटीमीटर. सो 13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वोल्टेज? 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. चार्ज किसके इक्वल आ गया? Capital Q comes out to be 6.5 into 10 raised to the power of -8 कूलम. सिंपल एज दैट. ठीक है, कैपिटल Q या चार्ज हमारे पास ये आ गया. ओके, नाउ हमें एक बात पता है बेटा, हमें एक बात पता है कि इस अनचार्ज का रेडियस क्या है? 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है,
एंड एट द फाइनल स्टेज दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम. ओके, सो लेट मी लेबल दिस एज स्फीयर 1, लेट मी लेबल दिस एज स्फीयर 2. मुझे पता है एट द फाइनल स्टेज वोल्टेज एट 1 विल बी इक्वल टू द वोल्टेज एट 2. तो बेटा, डू आई नो दिस फॉर्मूला? यस. कैन आई रीअरेंज दिस फॉर्मूला? वोल्टेज इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय capacitance, sorry not voltage, charge divided by capacitance. ओके, अब बेटा एट स्फीयर 1 देखो, जब ब्लू वाला चार्ज हो जाएगा, चलो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. लेट्स से आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, ये आफ्टर चार्जिंग की डायग्राम है, ठीक है. दिस इज अ डायग्राम फॉर आफ्टर चार्जिंग. ब्लू वाला एंड रेड वाला स्फीयर विल रिमेन सेम. होगा ये कि रेड वाले स्फीयर पे लेट से पहले चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू. इस कैपिटल क्यू से कुछ चार्ज माइनस हो जाएगा एंड इट विल गेट ट्रांसफर्ड ऑन टू द ब्लू वाला स्फीयर. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. रेड वाले स्फीयर से कुछ चार्ज निकल के ब्लू वाले स्फीयर पे चला जाएगा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. एंड व्हेन विल द प्रोसेस स्टॉप? व्हेन बोथ विल हैव द सेम पोटेंशियल. ओके, now let's start plugging in the values. इसको हम यहाँ पे ले आते हैं and let's zoom out a bit as well ताकि values दिखती रहें, ठीक है. अच्छा, वोल्टेज एट 1 किसके इक्वल होगा भाई? वोल्टेज एट 1, चार्ज एट 1 क्या था, 6.5 into 10 raised to the power of -8. बट नाउ द चार्ज वुडेंट रिमेन दिस एंटायर क्यू. इसमें से स्मॉल क्यू माइनस हो जाएगा, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू द सेकेंड स्फीयर. अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है ऑफ द बिगर स्फीयर? 4 पाई ई नॉट. आर की वैल्यू क्या है? 13 into 10 raised to the power of -2 is equals to, what is the voltage at the second sphere? The voltage at the second sphere will be equal to Q divided by 4 pi E naught, and what is the radius? 5.2 into 10 raised to the power of -2. 4 pi mu naught यहाँ पे कैंसिल, 4 pi mu naught यहाँ पे कैंसिल, 10 minus 2 यहाँ पे कैंसिल, 10 minus 2 यहाँ पे कैंसिल. Let's cross multiply it. 5.2 into 6.5 into 10 raised to the power of -8 minus q, ठीक है, is equals to 13 q. 5.2 से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, दिस विल बिकम व्हाट? 3.38, ठीक है. 3.38 into 10 raised to the power of -7 minus 5.2q is equals to 13q. 5.2q को दूसरी साइड पे ले जाओ. 3.38 into 10 raised to the power of -7, this becomes equals to what? 18.2q. Simple as that, nothing complicated. q किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 3.38 into 10 raised to the power of -7 divided by 18.2. चलो भाई, let's calculate it. Answer divided by 18.2. This comes out to be 1.86. Q comes out to be 1.86 into 10 raised to the power of -8 coulombs. So इतना charge है Q that is being transferred between the two sphere. This is your small q that is being transferred between the two sphere. Let's see and check our answer as well. Yes, correct. बिल्कुल आंसर करेक्ट है. अगर मैं इसे 2 significant figures तक लिख दूं तो this will also become 1.9 into 10 raised to the power of -8 coulomb. Simple as that. Let's further move ahead. Let's move on to this question. State a similarity between gravitational field lines and electric field lines. यार ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम? यू कैन राइट बोथ आर रेडियल. Gravitational field lines and electric field lines both are radial. Let's move on to part B. The variation with radius r of the electric field strength due to an isolated charge sphere in a vacuum is shown in figure 6.1. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस r का ग्राफ गिवन है. ओके, स्टेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर. भाई रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा?
the point till which the electric field strength is 0. This point, this is 2.1 centimeter. Let's write it down, 2.1 centimeter. Calculate the charge on the sphere. बेटा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 1.3 into 10 raised to the power of 5. Okay, let's write down the formula for electric field strength. Electric field strength is equals to Q divided by 4 pi mu naught R square. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है भाई? 1.3 into 10 raised to the power of 5. 1.3 into 10 raised to the power of 5. चार्ज हमने निकालना है. सो लेट्स आइसोलेट इट टूवर्ड्स द अदर साइड. इसको यहाँ पे लिख देते हैं Q. बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12. ओहो, स्टिल द स्पेस इज लेस, तो इसको और फर्दर यहाँ पे ले आते हैं. एंड व्हाट इज R? R वॉज 2.1. तो 2.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 का होल स्क्वायर. Let's see what the answer comes out to be. 1.3 into 10 raised to the power of 5. Okay. Multiply करो 4 pi से multiply by 8.85 into 10 raised to the power of -12. Okay. And multiplied by, one second. Here we multiply it by further 2.1 into 10 raised to the power of -2 whole square. एक second. Whole square. The answer comes out to be 6.4 into 10 raised to the power -9. 6.4 into 10 raised to the power of -9 coulombs. Let's see whether I am right or wrong. Where is the charge का answer? Yes, correct. देख रहे हो कितना accurate answer आ रहा है. Let's move on to part C. Use the formula for electric potential due to an isolated point charge to determine the capacitance of the sphere in B. यार capacitance निकालनी है. capacitance का क्या formula होता था बेटा? Q divided by what? Q divided by V. V का क्या formula होता था electric potential का? Very easy. Q divided by 4 pi E naught R square. 4 pi E naught R, sorry, not R square. ठीक है. Can I place this formula? Can I place this formula in place of this? Yes, surely I can. Let's place it. Q divided by Q upon 4 pi mu naught R. Q और Q क्या करेगा? कैंसिल आउट कर जाएगा. कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगी? 4 pi mu naught R. 4 pi को इसी तरह रखोगे. म्यू नॉट की जगह you will put 8.85 into 10 raised to the power of -12. What will be the radius? रेडियस किसके इक्वल होगा बेटा? 2.1 सेंटीमीटर. सो प्लेस इट हियर. 2.1 into 10 raised to the power of -2. Let's calculate the answer. 4 pi into 8.85 into 10 raised to the power of -12. ठीक है. Multiplied by 2.1 into 10 raised to the power of -2. ठीक है. This comes out to be, capacitance comes out to be 2.34 into 10 raised to the power of -12 farad. Simple as that, nothing complicated. ये हमने यहाँ पे देखना है आंसर. Yes, it is correct. Let's move on to the next question. What is meant by field of a force? Field of a force से क्या meaning होता है? Region of space where other charge particles experience a force. Okay. State one similarity and one difference, okay, between the electric field due to a point charge and the gravitational field due to a point mass. Similarity क्या होगी? Both are radial. Difference क्या होगा? Gravitational field is attractive only. ठीक है. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ओनली अट्रैक्टिव. whereas you can continue this statement further, whereas electric fields are both attractive and repulsive. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं बेटा? बोथ अट्रैक्टिव एंड
repulsive. Simple as that, nothing complicated. An isolated metal sphere of radius 0.5 meter is situated in a vacuum as illustrated in figure 5.1. ठीक है. The electric field strength at the surface is this. यार surface पे electric field strength ये है. You need to calculate Q of the charge. ठीक है. Calculate the Q of the charge. So what will be the formula of electric field strength? E is equals to Q divided by 4 pi mu naught r square. Okay. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है बेटा? 84 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट की क्या वैल्यू है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. रेडियस की क्या वैल्यू है? 0.15 का होल स्क्वायर. चार्ज की वैल्यू क्या आ जाती है? 84 इंटू 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके. मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का होल स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 2.1 into 10⁻⁻10. 2.1 into 10⁻⁻10 coulombs is your charge. Let's further move ahead. The gravitational field strength at point P, a distance 0.45 meter from the center of the sphere. भाई सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. ठीक है. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता था? E used to be equal to Q डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू नॉट आर स्क्वायर. क्यू की क्या वैल्यू निकाली है जस्ट अभी? 2.1 इंटू 10⁻⁻10. 4 पाई म्यू नॉट की क्या वैल्यू है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. एंड व्हाट इज आर की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन? 0.45 का स्क्वायर. सो लेट्स प्लेस दिस 4 pi into 8.85 into 10⁻⁻12 into 0.45 का whole square. This comes out to be what? 9.3. 9.3 is your answer for the electric field strength at 0.45 meters. Okay. Now you have to plot the graph of electric field strength versus distance. सही है. ठीक है. तो as you can see the radius is 0.15 मीटर. सही है. तो बेटा रेडियस इज 0.15 मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट 0.15 मीटर विल बी 0 लाइक दिस. ठीक है. इस तरह 0 हो जाएगी. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? आफ्टर दिस you will reach a value of what? You will reach a value of 84 as indicated in the question. So 84 will be somewhere here. This will be 84. So place a point here and draw a vertical line like this. ठीक है. ये आ गई आपकी vertical line. Okay. Now at 0.45 का distance आपकी electric field distance क्या थी? 9.3. Let's place that as well. 1, 2, 3, 4 and 5. This comes out to be your second point. ठीक है. हाँ, round about 9.3 है. You draw a curve between them. You draw a curve between them like this. ठीक है. Now if you have been following this channel for a long time, you know the best and the worst part. The worst part here is that my drawings are miserable. This should be a curve, not a line. ठीक है. चलो, let's further move ahead. Have we gotten the correct answers? Yes, we have gotten the correct answers. Chalo, let's further move ahead. Define electric potential at a point. We have already done this. You can refer the notes or the previous part in the video. 2 point charges A and B are separated by a distance of 12 centimeter. ये एक point charge A है, ये B है. They are separated by a distance of 12 centimeter as illustrated in figure 5.1. Okay. The charge on A is this. A का charge ये है बेटा. ठीक है. The point P, ठीक है, lies on line joining charges A and B. यार ये जो point P है ये lie कर रहा है on the line joining A and B. Okay, perfect हो गया. Its distance from charge A is x. यार इसका distance from charge A क्या है? x. ठीक है. इसका distance from charge A is x. Simple as that.
The variation with distance x of the electric potential at point P is shown in figure 5.2. ठीक है, हमें बेसिकली क्या गिवन है भाई, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है. कैलकुलेट द चार्ज ऑफ बी, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ बी. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेते हैं. ठीक है, ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेट्स कंसिडर ये वाला पॉइंट. हियर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर बी. सो लेट्स डू दैट. एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर बेसिकली हो क्या रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चलो, नाउ यू कैन से हियर के द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी एट 4 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए किस तरह निकलेगा बेटा, वेरी इजी. Q of A divided by 4 pi mu naught, and what is the distance? The distance is 4 सेंटीमीटर है तो 10 raised to the power of -2. सिंपल एज दैट. अच्छा, पोटेंशियल एट बी किस तरह निकलेगा, चार्ज ऑफ बी डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू नॉट. ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस क्या होगा, ये 12 से आपने मेजर करना शुरू करना है टिल 4, दैट इज 8. दिस इज 8 into 10 raised to the power of -2. Are some things getting cancelled out? Yes. 4 pi mu naught cancel हो रहा है, 10 raised to the power -2 cancel हो रहा है, 10 raised to the power of -2 cancel हो रहा है. Okay, do you know the charge of A? Yes, 2 into 10 raised to the power of -9. Let's place it here. 2 into 10 raised to the power of -9. Okay, and this is getting divided by 4 is equals to QB divided by 8. This becomes 1, this becomes 2. QB is equals to 4 into 10 raised to the power of -9 coulombs. Now please pay attention, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन द नेगेटिव एक्सिस जा रहा है. यस, दिस इज गोइंग इन द नेगेटिव एक्सिस. हमेशा क्या बात याद रखने के लिए मैंने की थी, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो योर चार्ज विल ऑल्सो बी नेगेटिव. सो राइट इट हियर, द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर बी इज 4 into 10 raised to the power of -9 coulomb. Simple as that, nothing complicated. कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया. Now we have to calculate the change in electric potential. Change in electric potential निकालना है. Okay, we have to calculate delta V. When point P moves from the position where x is equals to 9 centimeter to a point where x is equals to 3 centimeter. Okay. बेसिकली आपने चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. बहुत ईजी है. x 9 है तो आपकी वैल्यू क्या है, -10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. x 3 है तो आपकी वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड, दिस इज 2. ठीक है, ओके. सो लेट्स राइट इट डाउन. चेंज इन पोटेंशियल निकालना है बेटा. फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, 3. तो 3 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 2 माइनस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 9, -10. एंड अगर एक्सिस पे देखोगे बेटा तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखा होगा, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. व्हाट डज द फाइनल आंसर कम आउट टू बी, 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. यस, 10 रेज़ टू द पावर 2 ही है ना. यस, इट इज़ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. यस. So multiply it. 1200 volts is your change in potential. Let's further move ahead. An alpha particle moves along the line joining points A and B. Okay.
the alpha particle moves from the position x is equals to 9 centimeter and just reaches the position x is equals to 3 centimeter. इसका मतलब क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये रीचेस का वर्ड जब भी आ जाता है, जब भी आप किसी पॉइंट पे सिर्फ रीच कर रहे होते हो, तो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू 0. ओके, यूज योर आंसर इन पार्ट बी to calculate the speed v of the alpha particle at the position where x is equals to 9. Okay, basically हमने क्या करना है, as you are moving towards 9 से 3, ठीक है, जैसे ही आप 9 से 3 जा रहे हो, आप पोटेंशियल क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन कर रहे हो. सो बेसिकली देयर इज अ गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे ही आप 9 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जा रहे हो, देयर इज अ गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन व्हाट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. भाई गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वोल्टेज. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकालते हैं, 1/2, नेगेटिव लगाएंगे ज़रूर, m. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखते हैं फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, सिंस वी आर अराइविंग एट 3. इनिशियल वेलोसिटी क्या रखेंगे, द वेलोसिटी एट 9 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको मैं लेट से vi मार्क कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि v9 रखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, हो जाए. तो q की वैल्यू क्या होगी फॉर एन अल्फा पार्टिकल, वेरी इजी. q की वैल्यू क्या होगी फॉर एन अल्फा पार्टिकल, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -19 मल्टीप्लाइड बाय 2. क्यों, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और वोल्टेज का डिफरेंस क्या आ रहा था, फ्रॉम 9 to 3 1200. ओके, फर्दर मल्टीप्लाई दिस बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था, 1/. डिवाइड दिस इंटायर वैल्यू बाय द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -27. दिस इक्वल्स टू vi स्क्वायर. चलो लेट्स कैलकुलेट द आंसर. 4 into 1.6 into 10 raised to the power of -19. Okay, let's further multiply it by 1200. Okay, divide it by 4 into 1.66 into 10 raised to the power of -27. Under root ले लो भाई इस वैल्यू का. Your velocity comes out to be what? Your velocity comes out to be 3.4 into 10 raised to the power of 5 ms -1 is your velocity. Let's check our answers कि भाई आंसर सही भी है या नहीं. 1200 वाला तो आंसर सही है, ये वाला आंसर भी परफेक्ट है. Let's further move ahead. A metal sphere of radius r is isolated in space. Okay, point P is a distance x from the center of the sphere. Okay, as illustrated in figure 7.1. ठीक हो गया भाई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है. ओके, state what is meant by electric field strength, a region in space where other charged particles experience a force. तो ये तो आप नोट से easily देख सकते हो in the lecture videos. सही है. Use figure 7.2 to determine the radius r of the sphere. Explain your working. Okay, आपने बेटा radius of the sphere निकालना है, तो radius of the sphere क्या होगा, the point till which the electric field strength is 0. ये point किसके equal होगा, 4.5 centimeters. So this is your radius, 4.5 centimeter. Use figure 7.2 to determine the charge q on the sphere. तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस क्या है, लेट्स सी दिस वैल्यू. ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई, लेट्स कैलकुलेट दिस. ये 4 बॉक्सेस नीचे है ना 20 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 18. ठीक है, ओके. चार्ज निकालना है भाई, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू नॉट R का स्क्वायर. E अभी देख के आ रहे हैं भाई, E किसके इक्वल था, 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5. रख दो यार यहाँ पे, 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इंटू 4 पाई इंटू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12. R की वैल्यू क्या निकाली है अभी, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू योर चार्ज. लेट्स कैलकुलेट दैट. 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 4
pi multiplied by 8.85 into 10 raised to the power of minus 12. ठीक है, and let's further multiply it by 4.5 into 10 raised to the power of minus 2 and further whole square it. चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.1. Charge comes out to be 4.1 into 10 raised to the power of minus 7 coulomb. Simple as that. An alpha particle is situated at a distance of 8 centimeters from the center of the sphere. Calculate the acceleration of the alpha particle. भाई एक alpha particle है जो 8 centimeters पे place किया हुआ है. ठीक है, so let's calculate the alpha particle की electric field strength. 1 second, 8 centimeter पे I will have to further zoom in. एक alpha particle पे 8 सेंटीमीटर की अगर डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी लग रही होगी? ये वाली वैल्यू. दिस इज राउंड अबाउट व्हाट इन द मिडिल, दिस इज ये वाली वैल्यू यहाँ पे. तो दिस विल बी राउंड अबाउट 5.75. ठीक है, ये 5.75 के इक्वल होगा. चलो लेट्स राइट इट डाउन यार. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो गई भाई? 5.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ, व्हाट वाज द 10 की पावर ऑन द एक्सिस? 1 सेकेंड, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. ओके, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. ठीक हो गया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा फोर्स निकालो अल्फा पार्टिकल पे क्या लगी होगी. दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल. और ये फोर्स किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं भाई? फोर्स कैन बी रिप्लेस बाय ma. ma इज इक्वल टू ई क्यू. एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई क्यू डिवाइडेड बाय मास. ई क्या है बेटा? 5.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. चार्ज क्या है अल्फा पार्टिकल का? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 19. मास क्या है अल्फा पार्टिकल का? 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 27. कैन आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन? वेरी इजीली. 5.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 सेकेंड 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 19. ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर दो. 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 27. This gives you an answer of 2.77 into 10 raised to the power of 13. 2.77 into 10 raised to the power of 13 ms minus 2. Let's see whether our answer is correct. हाँ, perfect. इसी तरह का आंसर आने. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमने बिल्कुल एक्यूरेट ली है. ठीक है, बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अगर रखोगे तो आंसर ये आ जाएगा. Let's further move on to the next question. अब state one similarity between electric field strength and gravitational field strength. ये बहुत इस तरह के सवाल कर लिए, so you can go and view the previous of the video. ठीक है, an isolated solid metal sphere. ठीक है, एक isolated solid metal sphere है that has a radius r and has a charge of q. Okay, as illustrated in figure 5.1. ठीक है, A point is distance 2r from the surface of the sphere. भाई एक point है जो distance of 2r है from the surface of the sphere. Okay. Determine an expression that includes the term r and q for the electric field strength at point P. यार electric field strength at point P निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Electric field strength is equals to q divided by what? 4 pi mu naught. Distance क्या है दोनों का? 3r ऐड करके 3r का स्क्वायर. दिस विल इक्वल टू व्हाट? q. 3r को स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम व्हाट? 9r स्क्वायर. 36 पाई म्यू नॉट r स्क्वायर. सिंपल एज दैट. अब c पे आ जाओ भाई. A second identical solid metal sphere B is now placed near sphere A. ठीक है, the center of the spheres are separated by a distance of 6r. ठीक है, as shown in figure 5.2. ठीक है, point P midway between sphere A and B. ठीक है, एक point P है जो midway है between sphere A and B. दोनों पे चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव चार्जेस. ठीक हो गया. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. अच्छा, स्फीयर P हैज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस नहीं है. A पे पॉजिटिव है, B पे नेगेटिव है. ओके ओके, थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग.
Explain why the magnitude of the electric field strength at P is given by the sum of the magnitude of the electric field strength due to each strength. ठीक है, वो कह रहा है भाई एग्जामिनर कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी एट P, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P वो सम क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट B का, क्योंकि बेटा द चार्जेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह होती थी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की किस तरह होती थी, ऑलवेज इनटू द चार्ज. तो बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज राइट. दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. If both electric field strengths are pointing towards the right or in the same direction, they can be added. Simple as that. You can write it here कि both field strengths are acting in the same direction. Field strengths are acting in the same direction. In the same direction. Simple as that. अब आ जाओ भाई पार्ट 2 पे. The electric field strength at P due to charged metal sphere is not in practice 2E, where E is the electric field strength determined in B. ठीक है भाई, वो कह रहा है कि आप तो ठीक कह रहे हो कि P पे दोनों की सम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. लेट से A की वजह से E आ रही थी, B की वजह से E आ रही थी, दोनों की वजह से 2E होनी चाहिए एट पॉइंट P, बट P पे 2E नहीं होती. वाई? बिकॉज चार्जेस गेट डिस्टॉर्टेड. देखो इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना, ठीक है, इस पूरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होके अपनी चार्ज की डिस्टॉर्शन करा लेते हैं. सो यू विल राइट इट समथिंग लाइक दिस कि द चार्ज स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर and the charge configuration gets distorted, and the charge configuration, or you can say the charge spread, gets distorted. ठीक है, let's further move ahead. Let's move on to the next question. Let's move on to this. Okay, so let's move on to this question. State an expression for electric field strength at a distance r from a point charge in a vacuum Q. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या एक्सप्रेशन होता है यार, कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं. Q डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू नॉट आर. इसमें सिर्फ कौन सा नया सिंबल यूज हुआ है, म्यू नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी. 2 point charges A and B are situated at a distance of 10 cm apart in a vacuum as illustrated in figure 6.1. ठीक है, चार्ज A और B क्या है, वैक्यूम में 10 cm अपार्ट है. ठीक है, a point P lies on the line joining charges A and B. Point P is a distance x from A. ठीक हो गया. The variation with distance x of the electric field strength at P is shown in figure 6.2. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेज x का ग्राफ गिवन है. परफेक्ट. लेट्स सी क्या लिखा है यार. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर चार्जेस A एंड B हैव द ऑपोजिट और सेम साइंस. यार A और B पे ऑपोजिट साइंस हैं, सेम साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं. वाई? बिकॉज इफ यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डजंट बिकम जीरो. और ये किस केस में होता था, ओनली इफ यू हैव ऑपोजिट साइंस. सो यू कैन राइट हियर ऑपोजिट signs. You have to state and also explain. And how will you explain it? Because resultant electric field strength doesn't become zero. Isn't zero. Simple as that. They have the same or different magnitude. अब ये थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा. अच्छा, अगर फोकस करो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर. ओके, एंड मिनिमम पॉइंट कहाँ बन रहा है, मिनिमम पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ बन रहा है, एग्जैक्टली एट मिडवे, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो यस, दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड. Why? Same magnitude. Why? Because minimum
electric field is at midway between two charges. Simple as that, nothing complicated. An electron is situated at point P. Without calculation, state and explain the variation in the magnitude of the acceleration of the electron as it moves from the position where x is equals to 3 till the position where x is equals to 7 सेंटीमीटर. ठीक है भाई, आपका एक इलेक्ट्रॉन है भाई जो मूव कर रहा है x इज इक्वल्स टू 3 का, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर का है बेटा, 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है. ओके, एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर. यू हैव टू टेल एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 3 to 7 सेंटीमीटर उसकी एक्सेलरेशन को क्या होगा, राइट? व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, बहुत इजी है बेटा. हमने अभी क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू. फोर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू. मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल्स टू ई. अगर आप गौर से फोकस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. सिंपल एज दैट. तो अब हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 3 to 5 सेंटीमीटर यू कैन राइट फ्रॉम 3 to 5 सेंटीमीटर एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन क्या करेगी? डिक्रीज. एट 5 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज मिनिमम एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम. अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फ्रॉम 5 to 7 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन विल इंक्रीज. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. State what is meant by electric potential at a point. Already done in the previous questions. Two parallel plates A and B are held a distance d apart in a vacuum as illustrated in figure 6.1. ठीक हो गया. Plate A is earth and plate B has a potential difference of V naught. ठीक है, प्लेट A क्या है बेटा? अर्थ है, और प्लेट B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V naught. ठीक हो गया. प्लेट point P is situated in the center region between the plates at a distance x from plate B. ठीक है, point P कहाँ placed है भाई? at a distance of x from plate B. ठीक है, the potential at point P is V. ठीक हो गया. इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है V. ओके हो गया. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. ऑन फिगर 6.2, draw the variation with x of the potential V for the values of x from x is equals to 0 till x is equals to d. बेटा x is equals to 0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी? V naught. x is equals to d पे आपकी वैल्यू क्या होगी? 0. अब बेटा देखो यहाँ पे हम हैबिचुएट हुए होते हैं ये वाला फॉर्मूला पढ़ के. V is equals to q divided by 4 pi mu naught r, और हम यहाँ पे गलती से एक कर्व बना देते हैं. बट दैट्स रॉन्ग. ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता था? फॉर अ स्फीयर. आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म प्लेट्स. तो यूनिफॉर्म प्लेट्स में वोल्टेज किस तरह डिक्रीज करता था भाई? लीनियरली डिक्रीज करता था, इस तरह, समथिंग लाइक दिस. सिंपल एज दैट. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Two isolated metal spheres M and N, each of radius r, are illustrated in a vacuum. Their centers are a distance d apart as illustrated in figure 6.3. Okay हो गया ये भी. ठीक है. What is further written? Each sphere has a charge of q. Okay. Point P lies on the line joining the center of the sphere and is at a distance y from the center of sphere M. ठीक हो गया. On figure 6.4, show the variation with distance y of the electric potential at point P for values from y is equals to 0 till y is equals to d. ठीक है बेटा, फर्स्ट चीज आपने ये याद रखनी है कि y is equals to 0 यहां से शुरू हो रहा है और y is equals to r तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा भाई? सिर्फ वोल्टेज v. एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. लेट्स मेक इट एट, यहाँ पे हम कर देते हैं यार इसको 1.5 बॉक्सेस बना देते हैं इस तरह. ठीक हो गया. इस तरह के 1.5 बॉक्सेस बना देते हैं. सिंपल एज दैट. ठीक है.
और एक और काम क्या करेंगे, एक और काम हम ये कर सकते हैं, हमें ये भी पता है कि डिस्टेंस d से लेकर d माइनस आर तक भी आपका वोल्टेज क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। बिकॉज देखो सरफेस के सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर से लेकर स्फेयर के सेंटर से लेकर टिल द सरफेस ऑफ द स्फेयर आपका वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। सो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वी विल आल्सो मेक अ लाइन लाइक दिस। ठीक हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें पता है कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द स्फेयर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, डिक्रीज। बट इधर एक और भी चीज हमने करनी है। इफ यू क्लोजली लुक, बोथ हैव अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू, बोथ हैव अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू। तो जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मिड पॉइंट पे होगा। वेयर इज द मिड पॉइंट, समवेयर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्व बना देते हैं इस तरह। हाउ डिड आई नो दिस इज द मिड पॉइंट, क्योंकि दिस is 15 boxes from d minus r and this is 15 boxes from r। तो मुझे पता चल गया कि यार ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू बनाऊंगा। आई विल easily score a 4 on 4 and enjoy my life। Let's further move on to the next question। State define electric potential at a point, हो गया है बहुत दफ़ा। State the relationship between electric potential and electric field strength, ये नहीं हुआ भाई। देखो electric field strength gradient, basically gradient, yeah, you can say negative gradient, a better word, negative gradient of electric potential graph is equals to what, is equals to electric field strength। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। Two parallel plates A and B are situated a distance of 1.2 centimeters apart in a vacuum as shown। okay, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं भाई, वो 1.2 सेंटीमीटर्स अपार्ट प्लेस हुई हुई है। ठीक है, प्लेट ए इज अर्थ, ठीक है, प्लेट ए क्या हुई हुई है, अर्थ हुई हुई है। एंड प्लेट बी हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -75 वोल्ट्स, ठीक है, वोल्ट्स सॉरी। अ हीलियम न्यूक्लियस इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स, अ डिस्टेंस x फ्रॉम द प्लेट्स। ओके, Initially the helium nucleus is at rest on plate A when x is equals to 0। ठीक है, जब x is equals to 0 है तो helium nucleus plate A पे रेस्ट पे। ठीक है, the helium nucleus is free to move between the plates। ठीक है, by considering energy of the helium nucleus, explain why the speed at which it reaches B is independent of the separation between the plates। बेटा आप हीलियम न्यूक्लियस को दूसरी प्लेट तक ले जा रहे हो, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो स्पीड आप रीच कर रहे हो वाई इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन। ओके, बेसिकली अगर हीलियम न्यूक्लियस दूसरी प्लेट पे जा रहा है, दैट इज प्लेट बी पे जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यू आर लूजिंग लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नॉट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in kinetic energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, Q मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 mv²। सो एज यू कैन सी दिस वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन, it is only dependent on what, mass, electric potential and charge। ठीक है, as the helium nucleus move from plate A to plate B, its distance x from the plate A increases। ठीक है, calculate the speed of the nucleus after it has moved 0.4 centimeter from plate A। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये निकालना होगा कि 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेट ए पे आपका वोल्टेज क्या होगा। लेट्स से समवेयर हेयर है, ठीक है, वी आर समवेयर हेयर 0.4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट विल वी डू, वी नो 1.2 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -75 वोल्ट्स। तो 0.4 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -25 वोल्ट्स या 25 वोल्ट्स। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, -25 वोल्ट्स। सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। चलो अब क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड। ठीक हो गया। अब व्हाट विल यू डू,
loss in electric potential energy is equals to gain in kinetic energy. ठीक है. Now, what is electric potential energy का loss calculated as Q negative multiplied by V voltage. ठीक है. Gain in kinetic energy किस तरह निकलेगी 1/2 m v square. ठीक है. Sorry, change in v square. Change in v square. Simple as that. अच्छा, चार्ज क्या होगा अल्फा हीलियम न्यूक्लियस का -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. वोल्टेज की वैल्यू क्या है भाई -25. दिस माइनस एंड माइनस गेट्स पॉजिटिव. 1/2 मास क्या होगा हीलियम न्यूक्लियस का 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27. अच्छा, वेलोसिटी हमने किसकी निकालनी है? द वेलोसिटी एट पॉइंट ए. ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालनी है, फाइनल डेस्टिनेशन पे निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है. हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि द हीलियम न्यूक्लियस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट प्लेट ए. सिंपल एज दैट. चलो, वेलोसिटी एट ए निकल आएगी भाई, इजीली निकल आएगी. हाउ विल वी कैलकुलेट दैट? 4 इंटू 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by 4 into 1.66 into 10⁻⁻27. Under root, your velocity comes out to be what? Let's calculate that. 4 into 25 into 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 4 into 1.66 into 10⁻⁻27. अंडर रूट ले लो भाई इसका आंसर. दिस कम्स आउट टू बी 4.9 into 10⁻⁴. Velocity at A comes out to be 4.9 into 10⁻⁴ ms-1. Nothing complicated. Let's see the answer. Exactly यही आंसर आ रहा है. So this marks the end of electric field के past papers. I have attached some more questions as well with the marking schemes. You can go through that. The PDF is in the drive link. If you have any other questions, you can ask me in the comments below. Thank you for watching.